Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, I hope that everyone is fine. First of all, congratulations to all the students that you people are promoted from class 5th to class 6. Your books and notebooks are available in the market, so you people buy your books and notebooks. You people must watch videos on YouTube channel, which link will be sent on WhatsApp group. I am your science teacher and this is your 6th class science book. Now open your book, page number 2. Okay students, our first chapter is about cell, tissue and organs. We have already learned in class 5 about cell, tissue and organs, and many of you will be familiar with the definition of the cell. That what is cell? We know that cell is the basic structural and functional unit of the living organisms. When different types of cells combine together, they make a tissue, and when similar tissue which perform a similar job, they combine together and make an organ. After, when different organs combine together, they make an organ system or an organisms. Now I will give you some example of the cell. We know that cells, for example nerve cells, these cells are present in our brain. And what is the function of the nerve cells? The nerve cells carry messages from brain to our body and from body towards our brain. Nerve cells, these are the example of the cell. Tissue, what are the example of the tissue? The example of the tissue is the epithelial tissue. These are present in our body. Organ, for example hand, eye, teeth, nose, your stomach, your heart, kidney, lungs. These are the examples of the organ. When these all organs are combined together, they make an organ system. For example, digestive system or respiratory system, skeletal system. And when these all systems combine together, they make an organisms. For example, a human body. Clear? ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया. फॉर एग्जांपल देखिए सेल, अगर हम सेल की बात करें तो सेल में हमारे पास नर्व सेल्स आते हैं. नर्व सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? नर्व सेल्स हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, जिनका फंक्शन क्या है, वो क्या करते हैं, मैसेजेस को हमारी बॉडी से हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं, फिर हमारी ब्रेन से हमारी बॉडी तक लेकर आते हैं. टिश्यू की अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो इसमें हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं. ये आपके पास टिश्यू की एग्जाम्पल्स हैं. उसके बाद ऑर्गन. ऑर्गन में आपके पास जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको दी है हैंड, आई, इसके अलावा आपके टीथ हैं, नोज़ है, टंग है. ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. हमारा ब्रेन है आपके पास, ठीक है. जब ये सारे ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो इससे हमारे पास बनता है एक सिस्टम. फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम. अब डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर आप देखें तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स आते हैं? जैसे आपका माउथ आता है. माउथ के बाद जो है फूड जो है वो आपके इसोफेगस में जाता है, फिर जो है वो आपके फूड पाइप में जाता है, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स, फिर रेक्टम, एनस. ठीक है, ये सारे जो ऑर्गन है ये हमारे पास पार्ट हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के. फिर जब बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स कंबाइंस होते हैं तो उससे हमारे पास बनता है एक ऑर्गेनिज्म. जैसे कि ह्यूमन की बॉडी, जैसे हमारे पास प्लांट भी जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इसी तरह एनिमल्स हैं हमारे पास. ठीक है, ये सब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. ओके, नाउ कम टूवर्ड्स द चैप्टर नंबर 1. तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारे पास है अबाउट सेल्स, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लर्न अबाउट सेल, कि सेल हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं. ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तमाम ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. छोटे छोटे यूनिट से बने होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं. ऑल्दो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स,
all of which have different job. Most cells have some certain features in common. For example, the cell membrane. What is cell membrane? Cell membrane is the outermost boundary of the cells. And what is the function of the cell membrane? That the function of the cell membrane is to control what goes in and out of the cell. सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास किसी भी सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि कौन से मटेरियल सेल में इन होंगे और कौन से मटेरियल सेल से आउट होंगे, इस चीज़ में आपकी हेल्प करता है, सेल को हेल्प करता है। वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ओके, वी आल्सो नो दैट सेल मेम्ब्रेन वर्क एज अ गेट कीपर। सेकेंड वन जो है वो हमारे पास है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस विच मेक अप मोस्ट ऑफ द सेल इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि मोस्ट ऑफ द सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। और कौन से सेल्स हैं? जैसे कि हमारे पास प्लांट्स में सेल्स हैं, एनिमल्स में हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है। द साइटोप्लाज्म कंटेन अ नंबर्स ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्म में हमारे पास बहुत सारे स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर बॉडीज होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। दीज डू सेवरल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमारे पास सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। What is the function of the mitochondria? The function of the mitochondria is to provide energy to the cell, and mitochondria is therefore also known as the powerhouse of the cell, ठीक है। इस वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अदर्स कॉल्ड राइबोसोम्स। इसके अलावा हमारे पास सेल के अंदर इनसाइड द सेल हमारे पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं। राइबोसोम्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं? राइबोसोम सेल के लिए प्रोटीन्स बनाने में हेल्प आउट करते हैं। बिकॉज वी नो दैट प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग यूनिट ऑफ द बॉडी। प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे पास हमारी बॉडी के बिल्डिंग यूनिट हैं। दे रिसीव केमिकल मैसेज फ्रॉम द न्यूक्लियस विच टेल देम एग्जैक्ट विच प्रोटीन्स टू मेक। हमारे पास राइबोसोम का फंक्शन ये है कि राइबोसोम जो है न्यूक्लियस को मैसेज देता है कि उसने कौन सा केमिकल जो है सेल के लिए बनाना है या कौन सा प्रोटीन जो है वो सेल के लिए बनाना है। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास आता है द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस कंटेन्स द सब्सटेंस कॉल्ड डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए हमारे पास क्या होता है? It is a thread-like structure present inside the nucleus. What is the function of the DNA? DNA is a hereditary material. DNA एक hereditary material है। आपकी बॉडी में कौन सा ऑर्गन कैसे बनना है, आप वो सारी इंफॉर्मेशन आपको DNA प्रोवाइड करता है। The nucleus carry the planes for the plants or animals the cell will grow into or be part of. It controls the kinds of chemicals the cell makes and how much of each of them is produced. It also controls how and when the cell divides. A plant or animal cell without a nucleus cannot reproduce. अब आपके पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में जैसे हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरह सेल की पूरी बॉडी को कंट्रोल करने में जो हेल्प करता है, जो ऑर्गेनल है, वो हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस जो है वो सेल की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी नो दैट कि एक सेल डिवाइड होकर उससे दूसरा सेल बनता है, तो इसकी डिवीजन में भी हेल्प करने वाला कौन है? उसको गाइड करने वाला जो है वो हमारे पास क्या है? वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस गाइड करता है कि इसने कब और किस वक्त इसने डिवाइड होना है और इससे दूसरा सेल बनेगा। जैसे कि देखिए लास्ट लाइन है आपके पास, अ प्लांट्स आर एनिमल सेल विदाउट अ न्यूक्लियस कैन नॉट रिप्रोड्यूस। अगर आपके पास सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा तो उससे दूसरा सेल नहीं बन सकता हमारे पास।
ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।